Hello class 10 students, welcome to today's online class. In today's class, our topic is AC generator. We have already understood and gone through the working principle, construction and diagram of DC generator. So we have understood what is generator. What is generator then? Generator is a device which generate electricity, or in other way we can say it is a device which converts mechanical energy of rotation into electrical energy. It provides us energy, it generates electricity. So first kind of electricity, first kind of current which we have understood, which was generating, was direct current. Direct current. Now we will see that how one another type of current is there, which is alternating current, and how it is generated by alternating current generator, AC generator. So let us understand first of all what is alternating current. So let us see what is alternating current. As you can see, first of all, go through the definition of it. Then we'll see by the help of a graph also, because graph helps us to understand the things in more better way. Alternating current, the current whose magnitude and direction keeps changing with time is called alternating current. एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, समय के अनुसार चेंज होता जाए, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. क्या ऐसा होता है करंट? यस, दिस टाइप ऑफ करंट इज देयर इन आवर हाउस होल्ड सर्किट. हमारे घर के जो सर्किट्स हैं जिससे हमारा टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एंड ऑल दिस थिंग्स, हाउस होल्ड जितनी भी चीजें चल रही है वो अल्टरनेटिंग करंट से ही चल रही है. तो डायरेक्ट करंट से क्या होता था? डायरेक्ट करंट हमें स्मॉल बैटरीज से मिलती है. लाइक यू आर लाइटिंग अ टॉर्च, उसमें जो बैटरी लगी है वो कैसी करंट देगी? एक बैटरी से मिलने वाली करंट डायरेक्ट करंट होगी. कार या फिर बाइक्स में जो बैटरी लगी रहती है वो डायरेक्ट करंट देती है. बट हमें जो हाउस होल्ड सर्किट्स में जो करंट मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो अल्टरनेटिंग करंट है. और you will also come to know more about alternating current when you will reach to the 12th class, and you will see how alternating current works and how alternating current is better than direct current. Direct current is also having its own advantages, and alternating current is also having its own advantage. But right now let us see what is alternating current with an example or a graph. So see here, the first example is of direct current. You can see from the diagram, the graph, I and T, करंट और टाइम. समय के साथ करंट की वैल्यू बढ़ तो रही है, चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड. पहले 4 एम्पियर थी, धीरे धीरे बढ़ते हुए 6 एम्पियर में पहुंच गई. वैल्यू बढ़ी करंट की, चेंज हुआ मैग्नीट्यूड, चेंज हुआ वैल्यू, चेंज हुई करंट की, मगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. मतलब सर्किट में अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एक ऐसा घूम रहा था करंट, सर्किट में जैसा घूम रहा था करंट वैसा ही गोल घूमते रहेगा, सर्किट में वैसा ही करंट फ्लो होता रहेगा. उसके करंट का डायरेक्शन पलटेगा नहीं, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा. बट ऑन द अदर हैंड, current's direction is being changed when we are talking about alternating current. You can see from this diagram, current is in y axis and time is in x axis. Then you will see current बढ़ रहा है, बढ़ा, फिर बढ़ना रुक गया और कम होने लगा, फिर कम होने, फिर जीरो हो गया. करंट समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी उल्टे डायरेक्शन में फिर बढ़ने लगा. बढ़ा, अपने हाईएस्ट वैल्यू तक गया, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में फिर घूमने लगा करंट. मींस पहले करंट ऐसा घुमा सर्किट में, फिर ऐसा घुमा सर्किट में, फिर ऐसा घूमेगा सर्किट में, फिर ऐसा घूमेगा सर्किट में. इन दैट वे alternating current flows in the circuit, and these all things happens at a very less time, approx 100 times in a second. एक सेकंड में ये 100 बार, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, यू 100 टाइम्स हो जाता है ये सारी चीजें. और आगे आप जानेंगे कि इसीलिए फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज बोलते हैं. मतलब एक सेकंड में 50 बार सीधा घूमता है, उल्टा भी घूमता है, तो 100 हो गया वो. इन दैट वे, आई एम जस्ट गिविंग यू समथिंग टू थिंक अबाउट. आई एम गिविंग यू फूड फॉर योर थॉट.
But right now, what is alternating current? Current whose magnitude and direction keeps on changing with time is called alternating current. Here you can see from the diagram, yes, it is changing, and this type of current is developed by AC generator. So let us see what is AC generator. As I have already discussed, whenever we study about any kind of device, जब भी हम लोग किसी डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, then we talk about four things. We try to describe it in four things, four subtopics you can say. First is principle of it, siddhant. Second is diagram, construction, and then working. Principle, construction, diagram, and working. So first of all, let us go through the principle. AC generator is a device which generate alternating current. Obvious सी बात, अभी हम समझ गए, एक ऐसा डिवाइस है जो alternating current पैदा करता है. It converts mechanical energy into electrical energy. Yes, it also is the device which convert, obvious it is generator because it is converting mechanical energy into electrical energy. It works on the principle of electromagnetic induction. तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में खास बात है, दोनों सेम चीज है, बस एक अल्टरनेटिंग करंट पैदा करेगा और एक डायरेक्ट करंट. दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. So this was it. Let us see the construction. Construction में थोड़ा सा चेंज है, बस क्या क्या पार्ट्स हैं इसके देखते हैं. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा, we will see in the diagram. आर्मेचर कॉइल एबीसीडी भी रहेगा. यहां पर स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग्स रहेंगी. स्प्लिट रिंग्स की जगह जो टूटी हुई, जो आधी आधी टूटी हुई जो रिंग्स थी उसकी जगह पूरी रिंग्स रहेंगी, जिसको हम लोग स्लिप रिंग्स कहेंगे. कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं, उसी को कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं. उनको हम नाम दे देंगे, दो स्लिप रिंग रहेंगी, स्लिप रिंग्स रहेंगी, S1 एंड S2. कार्बन ब्रशेस जैसे कि पहले थे B1 और B2, और गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए कि करंट डेवलप हुआ कि नहीं. सो लेट अस सी इन द डायग्राम दिस ऑल थिंग्स. ये रहा हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. आर्मेचर कॉइल ABCD, आर्मेचर कॉइल ABCD, एंड दो स्लिप रिंग्स की बात हुई थी, तो S1 पहला स्लिप रिंग, दूसरा S2 दूसरा स्लिप रिंग. दो कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, दो कार्बन ब्रश हो गए. गैल्वेनोमीटर G. दिस इज द सेटअप. सेम वे ओनली स्लिप रिंग्स आर देयर. स्लिप रिंग 1 याद रखना, स्लिप रिंग 1 अभी यहां हमेशा इन कांटेक्ट रहेगा, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा B2 के, कार्बन ब्रश B2 के. और स्लिप रिंग 2 हमेशा कांटेक्ट में रहेगा B1 के. पहले क्या होता था, चेंज हो जाता था हाफ रोटेशन के बाद. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला, कांटेक्ट करंट की वैल्यू चेंज है ना. वहां पे क्या होता था, कांटेक्ट जो था कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग का, वो चेंज होता था, जिसके कारण करंट सेम फ्लो करता था सर्किट में. और उसी चीज को अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसको पलट दे रहे हैं. वी आर लुकिंग एट इट. स्लिप रिंग इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ पर्टिकुलर कार्बन ब्रश. दैट्स व्हाई वी विल गेट every time in a half cycle we'll get different direction of current. We'll see that. Now see, let us go through the working part of it. If you haven't gone through, if you have seen the diagram working, so as the same way, in the same way we'll see that first half rotation and second half rotation. We'll divide that working according to first half rotation and second half rotation. So for that, when armature coil ABCD is placed in between strong magnet and coil is rotated in clockwise direction, for arm AB, force is upward and magnetic field is from north to south pole. North to south pole. So when armature coil ABCD is placed between strong magnet NS, those strong magnetic pole नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में हमने मैग्नेटिक आर्मेचर कॉइल को रखा, ABCD नाम दे दिया उनको. और फिर उसके बाद हम देखें कि रोटेशन हो रहा है उसमें. सो विल सी हाउ द रोटेशन इज. लेट अस सी फ्रॉम द बोर्ड डायग्राम. नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट, बीच में ABCD आर्मेचर कॉइल, और ये रोटेट कर रहा है. देखो रोटेट कर रहा है. अब देखो इसको, इफ यू विल सी फ्रॉम हियर हाउ दिस इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. Clockwise it is rotating. This is the clockwise direction. So when it will move, it will rotate in clockwise. This side AB will go upward and side CD will go downward. तब तो ये फिर clockwise घूमेगा. Okay. तो force AB में कैसा पड़ रहा है,
ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ. सो राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी विल यूज. राइट हैंड बाय आवर फोर फिंगर विल शो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ. मोशन ऑफ द कॉइल, आर्म किधर जा रहा है, ये आर्म है ना, एक आर्म ए बी और सी डी. तो ए बी की बात करते हैं, ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ योर मिडिल फिंगर विल शो यू द करंट, इंड्यूस्ड करंट. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ है ना, कॉइल के अंदर, मतलब ए से बी की ओर, ए से बी की ओर करंट का डायरेक्शन हुआ इस साइड के लिए. चलो इधर आते हैं, इस तरफ देखिए कॉइल ऐसा घूम रहा है, सीडी नीचे जाएगा, सीडी में कैसा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ का फोर्स लग रहा है सर. मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ. सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. सो राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, force downward, current will come in outward direction from C to D, from C to D, from C to D will be the direction of current, means from C to D outward to the this blackboard, okay, green board, C से D. so now see, A से B जा रहा है करंट, फिर उसके बाद C से D, फिर अब आगे की काट एक्सटर्नल सर्किट में कैसा जा रहा है. देखिए D से निकला, D से कांटेक्ट में है स्लिप रिंग 2, देखो ये बीच से गुजरा, स्लिप रिंग 2 है कांटेक्ट में, वहां से ये है B1 कार्बन ब्रश 1, उसमें गया, यहां से करंट ऐसा गया, यहां गया, ये गैल्वेनोमीटर को मूव करेगा, गैल्वेनोमीटर को आगे डायरेक्शन में डायल को मूव करेगा और B2 में जाएगा, फिर S1 में जाएगा और फिर AB. तो हाँ, ये हुआ सर्किल में, एक सर्किट में पूरा गोल घूम रहा करंट. here we can say that it is current is flowing from where to where, we'll see A to B to C to D. देखो D से फिर S2 कांटेक्ट में है ना, स्लिप रिंग S2 B1 गैल्वेनोमीटर G, देन B2 कार्बन ब्रश, B2 से फिर स्लिप रिंग 1 और स्लिप रिंग 1 देखो A से फिर कांटेक्ट, मतलब इट इज नाउ इन क्लोज्ड सर्किट. करंट विल फ्लो ओनली व्हेन सर्किट इज क्लोज. सो हियर वी कैन सी करंट इज इन वन डायरेक्शन, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट हाफ सर्किल, फर्स्ट हाफ रोटेशन. बट व्हाट विल हैपन दिस व्हेन इट विल कम बैक और इट विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए बी पहुंच जाएगा आधे रोटेशन के बाद में साउथ पोल के पास, और सी डी पहुंच जाएगा आधे रोटेशन में नॉर्थ पोल के पास, और इट विल कीप ऑन कंटिन्यू टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस कॉइल विल कीप ऑन रोटेटिंग क्लॉकवाइज. तो आधे रोटेशन के बाद सी डी, ये जो सी डी है पहुंच गया यहाँ पर और ए बी पहुंच गया यहाँ पर. तो कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, लेट अस सी, देखते हैं. तो सबसे पहले ये सारी चीजें मिटा देते हैं, डायरेक्शन वाली बात, करंट का डायरेक्शन भी अभी देख लेते हैं, बाद में क्या होगा. साइड इंटरचेंज हो गए, साइड बदल गया. साइड क्यों बदला, क्योंकि अब आधा रोटेशन हो चुका है, आधा घूम चुका है, आधा चक्कर घूम चुका है आर्मेचर कॉइल. तो ये जो सी डी था वो इधर पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया डी, यहाँ पे पहुंच गया सी, देखो सी डी, और ए बी यहाँ पे था वो इधर आधे रोटेशन के बाद यहाँ पहुंच गया बी और ए यहाँ पर. ये इमेजिन हो पा रहा है, देखो ए बी इधर था, ए इधर, ये गोल घूमकर ए इधर हो गया, बी इधर, डी इधर, सी इधर, आधे रोटेशन के बाद. ठीक ठीक, आधा रोटेशन हो चुका है, हमको ये करंट पहले रोटेशन में मिला, ऐसा घूमा था हमारा गैल्वेनोमीटर, इस सर्किट में, आउटर सर्किट में ऐसा करंट घूम चुका था, तो हमने देख डाला. नाउ विल सी इन द हाफ, नेक्स्ट हाफ रोटेशन और द सेकंड हाफ रोटेशन, व्हाट विल बी द करंट. galvanometer will show the direction of current and presence of current both. so now CD इधर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ से साउथ. अब देखो अभी ये फिर कैसे घूमना चाह रहा है, CD डायरेक्शन ऊपर जाना चाह रहा है, CD आर्म ऊपर जाना चाह रहा है, मतलब इसमें फोर्स लग रहा है ऐसा F ऊपर की तरफ. ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर की तरफ, करंट कैसा, मिडिल फिंगर से आप बताओगे अंदर की तरफ, D से C,
डी से सी की ओर करंट का डायरेक्शन, डी से सी की ओर, डी से सी की ओर, ठीक है। नाउ सी विल कम टू द आर्म ए बी, ए बी साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। फोर्स, अब देखो ये कैसे मूव होना चाह रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सो फोर्स विल बी ऑन, मोशन विल बी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट विल बी फ्रॉम द मिडिल फिंगर कमिंग आउट, या फिर बी से ए, बी से ए, बी से ए। नाउ विल सी द आउटर सर्किट में कैसा होगा करंट। देखिए डी से सी गया करंट, फिर बी में, फिर ए में, और ये फिर निकलते हुए S2 में। देखो ए से कनेक्शन किसका, S2, स्लिप रिंग 2 का, स्लिप रिंग 2 से B1 में, B1 से हाँ B1 से, अच्छा पलट गए भाई, पलट गए मतलब, अच्छा पलटा है मतलब, नो 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 नो, घबराना नहीं, घबराना नहीं। देखो ए बी साइड इधर हो गया, यानी कि इसके कनेक्शन में ए बी है और ये अंदर से गुजर कर आ रहा है, हाँ ये कनेक्शन ये है जो इसमें हम गलती कर बैठते हैं, ठीक। देखो वो पलट गया तो स्लिप रिंग का कांटेक्ट भी तो पलटा, स्लिप रिंग का कांटेक्ट सेम रहा, मगर स्लिप रिंग भी तो पूरा एक रोटेशन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ी ना करना, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, हर बार होती है। पहले स्लिप रिंग इसके कांटेक्ट में था और अभी भी इसी के कांटेक्ट में है, मगर ये देखिए ये भी तो पलटेगा, यूं हुआ तो देखिए यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। अब देखो डी सी बी ए, ए से निकलते हुए स्लिप रिंग 1 में, B2 में करंट इसमें गया, यूं गोल घुमा, गोल घूमकर गैल्वेनोमीटर को, डायल को लाते हुए आगे, फिर यहाँ पे पहुंचा B1 में, फिर S2 में, S2 से फिर D से C, यानी फॉर हाफ रोटेशन, नेक्स्ट हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस, D C B A, A से फिर S1 B2 B2 G G B1 S2 B1 S2, this will be the direction of current in the second half rotation. So see, पहले डायरेक्शन ऑफ करंट था ऐसा आउटर सर्किट में ऐसा, और हाफ रोटेशन के बाद एक बार हाफ रोटेशन के लिए ऐसा था और नेक्स्ट हाफ रोटेशन के लिए ऐसा था, एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यू रिपीटिंग इटसेल्फ। हाफ रोटेशन ऐसा घूमेगा, ये जब आधा घूमेगा तो करंट ऐसा जाएगा, फिर आधा और घूमेगा तो करंट ऐसा जाएगा, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे करंट, ऐसे करंट, मींस direction of current is changing as well as magnitude will also change, you will see later on. So what is happening here, direction of current and magnitude is changing. This type of current being generated is called alternating current, which is because its value and direction is altering का मतलब changing, that's why it is called alternating current. And a new kind of current which is having a वास्ट एप्लीकेशन, यू विल सी, बहुत ज्यादा एडवांटेज भी होते हैं और उसके आगे की भी स्टडी बहुत सारी होती है। सो दैट्स व्हाई अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, क्योंकि इसने क्या जनरेट किया, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। देखिए डायल पहले ऐसा था फर्स्ट रोटेशन के लिए, फर्स्ट हाफ रोटेशन के लिए, अब यूं उल्टे डायरेक्शन में हो गया। सो दिस इज व्हाट अल्टरनेटिंग करंट इज। व्हाट यू विल राइट इन द वर्किंग, आई विल शो इन द पीडीएफ। मैंने जो बोला अभी पहले हाफ रोटेशन के लिए डिस्कस करेंगे, इसमें आर्म में कैसा फोर्स है, इधर के आर्म में कैसा फोर्स है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर करंट का डायरेक्शन शो कर देंगे हम फर्स्ट हाफ रोटेशन के लिए। सेकंड हाफ रोटेशन के लिए हम पलट दिए, नॉर्थ पोल के पास आ गया CD आर्म, साउथ पोल के पास आ गया AB आर्म, और अब देखेंगे हम तो करंट का डायरेक्शन ऐसा था। इन द एंड विल राइट current of direction of current is changing when we are talking about first half rotation and second half rotation. So for a complete rotation, two different direction of current is there, that's why it is called alternating current, and this generator is called alternating current generator, AC generator. So this is it for today. I hope you have understood. It is a very important topic as well as the favorite question of board exam, so understand it. I'll send you the notes also.
Keep studying. Have a nice day.